Good morning students. Now today we are going to discuss about the lecture number 13. You can see in this lecture we are going to study some more complex SQL retrieval queries that includes some null and three valued logic comparison that comprises of the nested queries, tuples, that comprises of the correlated nested queries, use of exist and unique, join table, aggregate function, grouping and other things. So in this first along with the general constraints, we are having one more topic, that is the virtual tables in SQL, views. Actually it is not in your syllabus, but you should having certain idea, that's why I have added here as the views. Next is the schema change statements in the SQL, that is the drop and the alter commands used. Now before going into the greater depth, we start with the more complex SQL retrieval queries. Up till now we have seen the basic SQL queries, in which we have seen that how the queries are going to be defined. Now we are having some more additional features that are added inside in the SQL. That means inside in the SQL it allows users to specify more complex retrieval from the database. Like the queries can be nested, it can be joined by the use of the join table, it can be by the use of the outer joins. Besides this, so these are the some important terms on things that are being needed inside in the query. Now the first important concept that came into existence is the comparison involving the null and the three valued logic. We are having the null. As you all know that sometimes we have filled some values inside in the tuples of attribute as null. Now the first important concept that came into existence is what is the meaning of null. If I say about the null, that means the null is going to define the three values. The first is the unknown value. That means the value is not known. Second is unavailable or the withheld value. That means the value is unavailable, either we don't know the value or it is holded by something else, some variables or somewhere else. Third is not applicable attribute. That means we don't have any applicable value. Now besides this, if I say about the null, then each individual null value considered to be different from the other. That means if we have used null at one place, अगर हमने null को एक जगह लिया है और हम null को दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, तो null पहली जगह अलग मीनिंग था, दूसरी जगह अलग मीनिंग था. ऐसा नहीं होगा कि नल हर जगह एक ही चीज को बताएगा, क्योंकि हमारे पास नल के तीन मीनिंग हैं. इसी तरीके से अगर हम SQL के अंदर देखें तो हमारे पास थ्री वैल्यू लॉजिक काम करता है. मतलब या तो वो वैल्यू SQL की क्वेरी के बेसिस पे ट्रू आएगी, या फिर वो वैल्यू फॉल्स आएगी, या फिर कभी कभी अननोन भी निकल कर आती है. इस तरीके से थ्री वैल्यूड वैल्यूज हमारे पास निकल कर आती है. अब नल का कंपैरिजन नल से ही होता है, मतलब नल इक्वल टू नल कंपैरिजन हम ज्यादातर SQL में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं जिसमें डिफाइन किया जाए. अब अगर आप कंपैरिजन करें नल का और तीन वैल्यूड का, वैल्यूड मतलब ट्रू, फॉल्स और अननोन, हमारे पास तीन वैल्यू निकल कर आ गई. ट्रू होगी वैल्यू या तो क्वेरी में हमेशा, या फॉल्स होगी या फिर अननोन होगी. अब हम इसको अगर अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बेसिस पे ट्रूथ टेबल से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन एंड है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स अननोन है और ट्रू फॉल्स अननोन है. ट्रू के बीच में अगर हम एंड करें तो वैल्यू ट्रू आती है, ट्रू फॉल्स के बीच में एंड करें तो फॉल्स आती है, और ट्रू अननोन के बीच में देखें तो अननोन आती है. इसी तरीके से फॉल्स का एंड करें ट्रू से तो फॉल्स होती है, फॉल्स करें तो फॉल्स होता है, और फॉल्स अननोन भी फॉल्स निकल कर आता है. अननोन ट्रू करें अननोन एंड फॉल्स करें फॉल्स, अननोन एंड अननोन करें तो भी अननोन निकल कर आता है. कहने की बात क्या है, एंड ऑपरेशन हमारे को इन्हीं सब चीज़ों से वैल्यूज़ को डिफाइन करता है. फिर आती है हमारे पास दूसरा ऑपरेशन और. अगर हम और को देखें तो और भी इसी तरीके से काम करता है. और की भी अपना टेबल है, जैसे ट्रू और ट्रू और फॉल्स, ट्रू और अननोन, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स और अननोन. तो इस तरीके से मेरे पास ये लॉजिक कनेक्टेड का ट्रुथ टेबल है, जो कि नल वैल्यूज के बेसिस पे कंप्लीटली डिफाइन करता है कि कैसे हमारे को वैल्यूज को यूटिलाइज करना है क्वेरी के अंदर. अब बात आती है, अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो SQL, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास SQL के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन SQL में हम उसको कैसे यूज करेंगे, या तो इज, मतलब या तो नल है, या इज नॉट नल, इसका मतलब या फिर नल नहीं है. अब अगर मैं एक क्वेरी देखूं, क्वेरी कहती है रिट्रीव द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव सुपरवाइजर्स. मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम निकालने हैं जिनके कोई भी सुपरवाइजर नहीं है. सबसे पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्लॉय से, वेयर सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर इज नल, मतलब सुपरवाइजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर नल है. नल होने का मतलब इज नल, मतलब उसकी वैल्यू नल है, उसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयज जिनका कोई सुपरवाइजर है ही नहीं वो मुझे मिल जाएगा.
अब अगर मैं इसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखूं तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में मेरे पास नेस्टेड क्वेरीज की ज़रूरत आती है। नेस्टेड क्वेरीज मतलब अगर मैं एक सेलेक्ट फ्रॉम वेयर के ब्लॉक के अंदर वेयर के थ्रू दूसरी क्वेरी को लिख दूं तो वो मेरी आउटर क्वेरी और नेस्टेड सब क्वेरीज कहलाती हैं। मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी कैसे लिखी जाती है? वेयर ब्लॉक के अंदर हम सेलेक्ट फ्रॉम वेयर का दूसरी क्वेरी के स्टार्टिंग करते हैं और इस तरीके से एक आउटर क्वेरी हो जाती है और एक नेस्टेड क्वेरीज हो जाती है। इसी के साथ साथ मेरे पास कभी कभी कंपैरिजन ऑपरेटर IN भी यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन IN ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर मुझे दो क्वेरीज की वैल्यू को कंपेयर करना है तो पहली वाली बाहर वाली तो आउटर क्वेरी है और दूसरी मेरे पास इनर क्वेरी है। तो मैं इनर क्वेरी में वेयर के बेसिस पे कंडीशन को जब लिखता हूँ पहली क्वेरी के, तो वहाँ पे अगर मैं IN ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो कंडीशन क्लियरली डिफाइन कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं नेस्टेड क्वेरी का एग्जाम्पल। देखिए ये बाहर वाली क्वेरी है जिसमें मैंने वेयर की कंडीशन लिखी, उसके बाद इन कंपेयर किया, इसके बाद मैंने क्वेरी लिख दी, मतलब दूसरी इनर क्वेरी लिख दी। अब इनर क्वेरी में मैंने और लगाया, फिर कंडीशन लिखी कंपेयर करके, तो मेरे पास इस पी नंबर इन मतलब कंपैरिजन के बेसिस पे पहली क्वेरी ये है और दूसरी क्वेरी ये है। तो या तो ये वाली क्वेरी काम करेगी या ये वाली क्वेरी काम करेगी। तो बाहर की एक ही क्वेरी है, अंदर की दो क्वेरी हैं जिनकी हमारे पास और के थ्रू हमने कंडीशन को डिफाइन किया है, कंपेयर किया है, तब रिजल्ट निकल कर आएगा और तब मेरी क्वेरी का फाइनल आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से ये नेस्टेड क्वेरी का एक एग्जाम्पल है जो हमें बताता है। अब अगर हम कभी कभी टपल्स को कंपेयर करें तो हम क्या करते हैं? अगर हम टपल्स की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम पेरेंथेसिस लगा देते हैं। जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स क्या हैं? टपल्स हैं, वेयर हैं। इसके अंदर मैंने कंपेयर किया तो ये तो मेरी कंपेरिजन की दूसरी क्वेरी हो गई, मतलब ये आउटर क्वेरी है बाहर वाली, ये इनर क्वेरी है। इसके अंदर पी नंबर और आवर्स की बेसिस को कंपेयर किया तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आ गया है। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास कभी कभी सिंगल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए और भी ऑपरेटर्स होते हैं। अभी मैंने इनका यूज़ देखा, अब मेरे पास एनी या सम ऑपरेटर भी होते हैं। मतलब या तो वो वैल्यू को रिटर्न ट्रू करेंगे या फिर वो कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास और भी अदर ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू काम करते हैं। तो या तो एनी होगा या सम होगा या फिर ऑल होगा। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेरी है, ये आउटर क्वेरी है, इनर क्वेरी है। अब मैंने ऑल कंडीशन लगा दी। ऑल कंडीशन मतलब सारी की सारी वैल्यू नेस्टेड क्वेरी के अंदर आ जाएंगी, अंदर वाली और बाहर वाली को मिलाकर। बस इस कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। तो नेस्टेड क्वेरी इस तरीके से एक्चुअल में काम करती है। इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं, एम्बिग्विटी होती हैं, जिसको कि हम पोटेंशियल एरर्स को, एम्बिग्विटी को एसक्यूएल के अंदर अवॉइड कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके और क्वेरी को नेस्टिंग करके। तो देखिए अगर मेरे पास ये बाहर की क्वेरी है जिसमें मुझे रिट्रीव करना है नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय जिसका डिपेंडेंट है और उसका फर्स्ट नेम और मुझे उसका एम्प्लॉय का जेंडर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास ये निकल कर आ रहा है। उसके बेसिस पे मैंने कंडीशन को लिया, इस कंडीशन के बेसिस पे इनर क्वेरी को लिया, क्वेरी के अंदर मैंने वेयर के अंदर पूरा डिफाइन किया और यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर IN यूज़ किया है। तो कहने की बात क्या है, एरर और एम्बिग्विटी के चांसेस इस केस पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके बहुत ही कम होते हैं। अब ये तो थी नेस्टेड क्वेरी, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। अब अगर मैं कोरिलेटेड क्वेरी लिखूँ, कोरिलेटेड मतलब जिन क्वेरी की मैं नेस्टेड करता हूँ उसमें या तो इक्वल टू यूज़ कर रहा था या मैं IN यूज़ कर रहा था। अगर मैं इसकी जगह एक ही लाइन में लिख दूँ तो ये मेरी कोरिलेटेड, कोरिलेटेड मतलब आउटर और इनर का इनमें कोई चक्कर नहीं है, मैंने एक ही लाइन में पूरी क्वेरी को डिफाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं इसी क्वेरी को, जो पीछे वाली क्वेरी थी, पीछे वाली ये क्वेरी थी, यहाँ पे नेस्टिंग में थी, बाहर वाली क्वेरी फिर अंदर वाली क्वेरी। जब मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया तो मेरे पास सेलेक्ट, ये, फ्रॉम, ये और इस तरीके से निकल कर आता है। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी यही होती है जो मुझे प्रॉपरली डिफाइन करती है। इसी के साथ साथ कभी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के अंदर हमें एग्जिस्ट और यूनिक फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। एग्जिस्ट फंक्शन ये बताता है कि रिजल्ट में कोरिलेटेड नेस्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, मतलब नेस्टिंग करने के बाद वैल्यू ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो एग्जिस्ट फंक्शन यही बताता है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। अगर वैल्यू हमेशा ट्रू है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू हमारे पास टपल्स की डुप्लीकेट नहीं है और वो यूनिक वैल्यू निकल कर आ रही है। तो यूज़ ऑफ एग्जिस्ट मेरे पास यही सब मुझे बताता है। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर के बेसिस पे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ जो कि कम्प्लीटली यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वेयर के कंडीशन में एग्जिस्ट 2 बार लिखा है, पहले यहाँ लिखा है फिर दूसरी बार लिखा है, जिसके बेसिस पे ये यूज़ किया जा रहा है। अब अगर इनके सेपरेट एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं जिसमें कि नॉट एग्जिस्ट को मैंने देखा। तो सबसे पहली बात यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल यूज़ किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट और लास्ट नेम के एम्प्लॉयज़ के मुझे निकालना है जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 को कंट्रोल करते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, अब मैंने ये मान के चला कि ये जो है डिपार्टमेंट नंबर 5 को कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट।
इसके साथ मैंने ये कह दिया इनको छोड़ के, तो मतलब टोटल में से अगर मैंने कह दिया कि ये नहीं है तो मेरे पास जितने बचे वो सारे निकल कर आ गए, यही मेरा नॉट एग्जिस्ट का एग्जाम्पल है। तो प्रॉपरली क्वेरी को मैंने इस तरीके से लिखा जिससे कि सारे के सारे डिपार्टमेंट 5 में काम करने वाले एम्प्लॉय मेरे पास निकल कर आ गए हैं। अब कभी कभी मेरे पास डबल नेगेशन भी यूज़ किया जाता है, ये एक वेरिएशन होता है। इसी तरीके से एक्सप्लिसिट सेट और रीनेमिंग की कंडीशन है जो कि ये बताती है कि हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को वेयर में क्लियरली लिख सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट में डिस्टिंक्ट लिख दिया, वेयर में कंडीशन लिख दी, इस तरीके से 1 2 3 ब्रैकेट में लगा के कंपेयर करके तो मेरे पास प्रॉपर आउटपुट निकल कर आ जाएगा। हम कभी कभी एज को रीनेमिंग भी कर देते हैं एट्रीब्यूट्स की, जिसके बेसिस पे प्रॉपर डिफाइन क्वेरी करी जा सकती है। साथ में टेबल्स को ज्वाइन भी करते हैं, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो अगर ज्वाइनिंग टेबल्स को फ्रॉम क्लॉज से देखें तो हमारे पास ये क्वेरी की परमिशन है जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ज्वाइन का मतलब एक से ज़्यादा टर्म ज्वाइन करते हैं, जिसमें नेचुरल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन, लेफ्ट राइट ज्वाइन, इस तरीके से प्रॉपरली किसी भी टेबल, 2 टेबल्स को ज्वाइन करके क्वेरी को डिफाइन किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स को रीनेम कर देता है। तो मेरे पास अगर ये क्वेरी है जिसमें मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस लिया है, एम्प्लॉय टेबल से लिया है, मैं उसको नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिपार्टमेंट का डी नंबर होगा और उसके बेसिस पे वेयर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। तो इसमें एम्प्लॉय डी नंबर, डिपार्टमेंट डी नंबर एक ज्वाइन कंडीशन है। 2 टेबल्स को मैंने इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे ज्वाइन किया है जो कि नेचुरल ज्वाइन को डिफाइन कर रहा है। ऐसे ही इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन होंगे। इनर ज्वाइन में हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन को लेंगे, टपल्स को इंक्लूड करेंगे। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट टेबल होगा, राइट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल होगा। जो वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी लेफ्ट टेबल की हम उन्हें नल से फिल कर देंगे। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो वैल्यूज़ फिल नहीं करेंगी उन्हें भी नल से फिल कर देंगे। तो ये आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। मेरे पास क्वेरी है जिसमें लास्ट नेम एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय नेम मैंने टेबल लिया है, s.l सुपरवाइज़र का नेम है। अब टेबल में मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया तो एम्प्लॉय मेरा क्या हो गया, ई सुपर SSN। मतलब ये सिंटेक्स था, सेलेक्ट ये था, फ्रॉम ये था और वेयर ये था, इसको मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन से इस तरीके से लिख दिया है। तो कहने की बात क्या है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, सुपरवाइजर का लास्ट नेम निकाला, एम्प्लॉय एक बार ई लिया और एस लिया, सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर को कंपेयर किया SSN के बराबर, मेरे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन आ गया। अब कभी कभी हमें मल्टी वे ज्वाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम में चेंजेस करते हैं। तो नेस्टिंग में फ्रॉम में अगर चेंज करें तब भी हमारे पास ज्वाइन काम करेगा। तो ये एक क्वेरी है जो कि हमें कंप्लीटली डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। अब आप जानते हैं एग्रीगेट फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन आप सब पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर काउंट, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज ये सब होता है, जिससे कि मल्टीपल टपल्स को हम डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे हम वहाँ पे करते थे वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं, बस सिर्फ एक क्वेरी को लिखने का तरीका अलग होता है कि यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन को सिंबल की जगह प्रॉपरली जो यूज़ करा गया है ऑपरेटर उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट में सम, मैक्स, मिनिमम ले लिया, ऐसे ही सब में सैलरी ली थी, मैक्स में सैलरी ली, टोटल सैलरी ली। तो मतलब जो जो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे रीनेमिंग होती है। अच्छा, कभी कभी हमें एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कार्ड कर, नल वैल्यूज़ को हम डिस्कार्ड भी कर देते हैं। तो हम नल वैल्यूज़ अगर यहाँ पे लिख देंगे तो हमारी जो प्रॉपर वैल्यूज़ हैं वो पर्टिकुलर कॉलम की डिस्कार्ड भी हो जाएंगी। आप इन क्वेरीज में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस थे। इसी तरीके से उनका ग्रुप बाय क्लॉज, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, ग्रुप का एग्जाम्पल, मतलब काउंटिंग को टोटल करना है तो हमने ग्रुप बाय ले लिया, डी नंबर की बात कर रहे हैं, बाकी सेम है, बाकी कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल रिकर्सिव क्वेरीज, ये सब एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेरीज का यही निकल कर आता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 था।